آج میں آپ لوگوں کو ایک حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنانے والی ہوں جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اس کی زلفیں لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ وہ قرآن کے ہر لفظ کو اپنے دل میں بسا چکی تھی اور والدین اس پر فخر کرتے تھے کہ ہماری بچی کتنی نیک ہے، ہماری بیٹی اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کو بیٹی وہ عطا کرے جو دیندار ہو، بیٹی وہ عطا کرے جن کے مقدر اچھے ہوں، بیٹی وہ عطا کرے جو اسلام کی شہزادی ہو، بیٹی وہ عطا کرے جس پر اللہ کے محبوب فخر کر سکیں، وہ عطا کرے جس پر اللہ کے محبوب فخر کر سکیں۔ اللہ اکبر! وہ لڑکی قرآن کے ہر لفظ کو دل میں بسا چکی تھی۔ والدین اس لڑکی پر فخر کرتے تھے، مگر یہ نعمت وقت کے ساتھ ساتھ آزمائش بن چکی تھی، مصیبت بن گئی تھی۔ پھر کیسے اس لڑکی کا نشانہ بنایا گیا، اس لڑکی پر اللہ کا عذاب برسا۔ یہ کوئی پرانے دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ اسی دور کا واقعہ ہے، یہ اس دور کی کہانی ہے اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ایک بار دل کے کانوں سے سن لیجئے میرے دوستوں، ایک بار دل سے سن لو میرے بھائیوں۔ آج میں بتاؤں گی وہ کون سی ایک گناہ کرتی تھی، وہ شہزادی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی کہ اسے دنیا کے سامنے ذلیل کیا گیا، دنیا کے سامنے اسے رسوا کیا گیا، اسے عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے پیارے دوستو سنو، اولاد ماں باپ کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے، اور جو ہوتی ہے ماں باپ کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے، وہ اپنے اولاد کی خوشی کے لیے، ہر خوشی کے لیے، ہر خواہش کے لیے خود کو قربان کر دیتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اولاد کے نام پر ماں باپ قربان کر دیتے ہیں تاکہ ان کا بچہ ہنستا کھیلتا رہے، تاکہ ان کا بچہ ہنستا کھیلتا رہے، تاکہ اولاد خوشنما رہے۔ لیکن جب یہی اولاد ماں باپ کے دل کو توڑ دیتی ہے، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے، والدین کی پوری دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا باپ جو دن رات اپنی بیٹی کے لیے جیتا رہے، اپنی بیٹی کے لیے جیتا رہا، اپنی جوانی بیٹی کے نام قربان کر دی، بڑھاپا بھی اپنی بیٹی کے نام قربان کر دیا، اس کی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کی سکون کو داؤں پر لگا دیا، مگر بیٹی نے ایک پل بھی نہ سوچا۔ بیٹی جب جوان ہوئی، ایک پل بھی نہ سوچا، ایک پل بھی نہیں اس نے سوچنے کی فرصت نہیں ملی۔ یہ باپ کسی کے سامنے جھکا نہیں، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آج میرے لیے کتنا بے بس ہو چکا ہے، آج میرے لیے کتنا بے بس ہو چکا ہے، آج میرے لیے وہ کڑکتی دھوپ میں کما رہا ہے، سوچنے پر مجبور کر دے گا یہ واقعہ۔ میرے دوستو غور سے سننا، ایک باپ جو بے اولاد تھا اور دن رات اللہ کے سامنے روتا تھا، وہ ہر روز روتا تھا، ہر درد پر کیا گیا، ہر درد پر روتا تھا، ہر در پر جا کر دعا مانگی، اس نے اپنے آنکھوں کے آنسو کبھی کسی کو دکھائے نہیں تھے، مگر اس کے دل کے اندر جو طوفان تھا وہ اس کا رب ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے اس نے اپنے آنسو کسی کو دکھائے نہیں تھے، اس کے دل کے اندر کا جو غم و طوفان تھا وہ میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا میری بھی کوئی اولاد ہو۔ وقت گزرتا گیا میرے دوستو، آخرکار اس
की दुआएं रंग लाई। अल्लाह ने उस शख्स को बहुत ही प्यारी बेटी अता फरमाई, उसको बहुत ही प्यारी बेटी अता फरमाई। उस शख्स ने अपनी बेटी को देखकर कहा, मेरी दुनिया की रोशनी है। इस बाप ने अपनी बेटी को अपनी खुशियों से मुकद्दम रखा। वह दिन भर मेहनत करता मगर अपनी बेटी के लिए हर सो सहूलत फराहम करता, रात भर मोहब्बत करता, अपनी बेटी को हर सहूलत फराहम करता। वह अपनी बेटी को खुश देखकर उठता था और खुश देखकर सोता था, खुश देखकर चलता था। सुभान अल्लाह। वक्त के साथ साथ बेटी जवान भी हो गई। एक दिन बेटी ने कहा, अब्बा मुझे मोबाइल ला कर दो। मैंने कहा, इसी दौर की कहानी है, बड़ी ही सबक आलूद है। इस्लाम की शहजादियों को तौबा करने पर मजबूर कर देगी ये कहानी। एक दिन बेटी ने कहा, अब्बू मुझे मोबाइल ला कर दो। बाप ने अपनी मासूम बेटी की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मैं शायद गरीब हूँ, मुझे गरीब समझते हैं, लेकिन तेरी हर ख्वाहिश मेरे लिए एक हुक्म है, क्योंकि मेरी दुनिया कुल सरमाया तू ही है, तू ही मेरी दुनिया का खजाना है, तू मेरी दुनिया है। बाप सोचने लगा और अपनी बेटी की आंखों में देखा और सोचने लगा कि ये मेरी कुर्बानी समझेगी भी कि नहीं। दोस्तों, वालिदैन अपनी खुशियों को दफन कर देते हैं, कसम खुदा की मिट्टी में मिला देते हैं ताकि औलाद के ख्वाब जिंदा रहें, औलाद का हर एक ख्वाब पूरा कर सकें। माँ बाप जब रोते हैं तो आँखें आंसू ज़मीन पर नहीं आसमान पर गिरकर बद्दुआएं बन जाते हैं। एक बाप अपने ख्वाब बेचकर अपनी बेटी के ख्वाब खरीदता है, मगर औलाद को यह कुर्बानी नज़र नहीं आती। रात का सन्नाटा था। एक बूढ़ा मजदूर हाथों में औजार थामे अपने दिन भर के काम का हिसाब लगा रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी मिट्टी और पसीने से आलूद थी। आँखों में नींद के बजाय थकन और फिक्रमंदी का साया था। नज़र आता था ये कोई आम बूढ़ा नहीं था, ये एक बाप था जिसके दिल में बेटी के लिए एक ख्वाब जिंदा था। बेटी ने कहा, अब्बा मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल ख़रीद के दो। बेटी का ये हुक्म सुनकर उस वक्त बाप तो मुस्कुरा दिया था, मगर उसके अंदर की दुनिया हिल के रह गई थी। वो जानता था कि इसका जेब खाली है, मगर बेटी की खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। सुबह का वक्त था। मजबूर सड़क के किनारे एक कतार में बैठे सुबह का वक्त था। मजदूर सड़क के किनारे एक कतार में बैठे काम के इंतज़ार में। उनके दरमियान एक बूढ़ा शख्स भी बैठा था, जिसका उम्र का बोझ झुकी हुई कमर और उसका कांपते हाथों से जाहिर हो रहा था। ये शख्स भी कभी किसी का सहारा था, लेकिन आज वो खुद एक सहारे का मोहताज हो चुका था। वो सर्दियों से कपकपाते हुए उम्मीद के साथ अपने बारी का इंतज़ार कर रहा था, कोई आए तो उसे काम पर ले जाए। लेकिन उसके इर्द गिर्द बैठे फर्द तो हंस रहे थे और तंज के तीर चला रहे थे। एक मजदूर बोला, अरे बाबा तेरा हाथ काँप रहा है, तू औजार कैसे पकड़ेगा? तेरा हाथ तो काँप रहा है, तू औजार कैसे पकड़ेगा? तुझसे एक ईंट भी नहीं उठाई जाएगी। तू क्यों अपनी ज़िंदगी इस धूप और बारिश और गर्मी में जाया कर रहा है? वो इतनी गर्मी में अपनी बच्ची को क्यों अपनी बची खुशी ज़िंदगी इस धूप में और छाँव में और परेशानियों में बर्बाद कर रहा है? बची खुशी ज़िंदगी इस धूप में परेशानियों में क्यों बर्बाद कर रहा है? लोगों ने कहा लगाकर कहा, बाबा बूढ़ा हो चुका है, तू बस आराम करने के लायक है, तू अब सोने के लायक है, तू अब चारपाई पर लेटने के लायक है,
काम करने के लायक नहीं है तो है। ये बात सुनकर बूढ़े बाप ने हाथ उठाकर अपनी धीमी आवाज में दर्द भरे लहजे में बोला, हाँ हाँ, हाथ कांपते हैं, मेरे कमर झुक चुकी है और मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है, मगर मेरा दिल अभी भी जिंदा है। जवानों, मेरा ताकत ख़त्म हो गया है लेकिन मेरा दिल अभी भी जिंदा है। मेरा दिल मुझे कहता है, जब तक मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती मुझे आराम का हक बिल्कुल नहीं है। बाबा जी ने अपनी नम आँखों से सबको देखा और कहा, मेरी बेटी ने कहा था कि किताबों के साथ साथ मोबाइल की ज़रूरत है ताकि मैं अपने पढ़ाई में आसानी पैदा कर सकूं। मैं अपनी बेटी को कैसे कहता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरी पूरी ज़िंदगी उसकी खुशियों में लगा दी, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा अपनी बेटी की खुशियों में लगा दी और मैं आज भी बेटी की खुशियों के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सब मजदूर खामोश हो गए, सब मजदूर खामोश हो गए। एक मजदूर ने कहा, बाबा, हम समझ ना सके कि तेरे कांपते हाथों के पीछे कितनी मजबूती है, तेरे कांपते लरसते हाथों के पीछे कितनी मजबूरी है, कितना ताकत है ये काम के लिए नहीं बल्कि बेटी के ख्वाब पूरे करने के लिए कांप रहे हैं। एक बेटी की ख्वाहिश पर वह बूढ़ा बाप 1 महीना मजदूरी करता रहा, इधर उधर भटकता रहा, कभी किसी की इमारत का ईंट उठाता, कभी खेत में पानी देता। इसके सफ़ेद दाढ़ी मिट्टी और धूल से जो सफ़ेद थी दागदार हो गई थी, उसके कंधे झुके हुए थे, उसकी कमर टेढ़ी हो चुकी थी, मगर उसका दिल एक ही बात कहता था कि मेरी बेटी खुश रहे। बेटी की हर एक खुशी पूरा करने के लिए तैयार था। उसके होठों पर मुस्कुराहट हो, मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, है उसके चेहरे पर खुशी हो। काम ख़त्म करके जब वो घर पहुंचता तो उसका हाल ऐसा होता जैसे दाढ़ी धूल से भरी होती। इसकी आंखों के नीचे सियाह हो चुके थे, काले पड़ गए होते थे, मगर जब वो अपनी बेटी को देखता तो उसकी तमाम थकन दूर हो जाती। महीना गुजर गया मेहनत मजदूरी करते, बेटी के हुक्म को महीना हो गया। मेहनत मजदूरी करते महीना गुजर गए। उसके हाथ में वो पैसे थे जो बेटी के मोबाइल के लिए जमा किए थे। आज बाप ने कपड़े साफ किए और बाजार जाकर मोबाइल ख़रीदा। जब वह बेटी के हाथों में मोबाइल रख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, बेटी, ये तेरे ख्वाब हैं, ये तेरे सपने हैं जिनके लिए मेरी सफ़ेद दाढ़ी मट्टी में घसीटती रही। ये तेरे लिए मेरे मोहब्बत का तोहफ़ा है। ये तू और इसे कबूल कर और इस तोहफे को संभाल कर रखना। जब जब बाप बेटी की तरफ हाथ में मोबाइल देखता तो दिल में सुकून महसूस करता, मगर अंदर एक सवाल इसे झिझोड़ देता, क्या यह वही बेटी है जिसके लिए मैंने दुनिया से लड़ा, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी जंग लड़ी? क्या वो मेरी कुर्बानियों को समझेगी? ऐ है, क्या ये वही बेटी है न जिसके लिए मैंने अपनी कुर्बानियाँ दी? बेटी की ख्वाहिश को इसने हर ख्वाहिश को पूरा किया, मगर वो नहीं जानता था कि ये मोबाइल उसकी बेटी के लिए तरक्की का ज़रिया नहीं बल्कि तबाही का दरवाज़ा बन जाएगा। बेटी ने जब मोबाइल लिया, कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्तों। बेटी ने जब मोबाइल लिया और उसके साथ इंटरनेट की दुनिया भी खुल गई। वो हर वक्त मोबाइल पर अपना वक्त वो मोबाइल में गुजारने लगी। अपना सारा